মুছলমানৰ হৈ চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছে। সদনত উদ্দাত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছে। লগতে ৰাম মন্দিৰক লৈ আছাদুদ্দিন ওৱেইছে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই চৰকাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰকাৰ নহয় নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। কোনো সম্প্ৰদায় বা কোনো ধৰ্মৰ চৰকাৰ নেকি? চৰকাৰৰ কোনো ধৰ্ম নাথাকে। গতিকে ভাৰতৰ কোটি কোটি মুছলমানক লৈ কি ভাবিছে মোদী চৰকাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছে। আমি জনাইছো বিশেষ খবৰ। চৰকাৰে ভাৰতৰ মুছলমানক লৈ কি ভাবিছে বুলি প্ৰশ্ন সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ। 17 কোটি মুছলমানৰ হৈ মাত মাতিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছে আৰু উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছে। মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে, প্ৰশ্ন কৰিছে মোদী চৰকাৰৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায় ধৰ্মৰ চৰকাৰ নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। দেশৰ কোনো ধৰ্ম নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছে। লগতে 22 জানুৱাৰী অনুষ্ঠানেৰে চৰকাৰে এটা ধৰ্মৰ ওপৰত আনটোৰ জয়লাভৰ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। মই বাবৰ জিন্না বা ঔৰংজেবৰ মুখপাত্ৰ নহয় বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য। মই ভগৱান ৰামক সন্মান কৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু মই নাথুৰাম গডছেক ঘৃণা কৰোঁ, কাৰণ নাথুৰাম গডছে সেই ব্যক্তিজনক হত্যা কৰিছিল যাৰ শেষ কথা আছিল হে ৰাম। আৰু সদনত ওৱেইছিৰ উদ্দাত্ত ভাষণ। আছাদুদ্দিন ওৱেইছে ৰাম মন্দিৰ বাবৰি মছজিদক লৈ এক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 17 কোটি মুছলমানৰ হৈ আছাদুদ্দিন ওৱেইছে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ উদ্দাত্ত ভাষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিহেতু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছে, 22 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, সেই অনুষ্ঠানেৰে চৰকাৰে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে যে এটা ধৰ্মই আনটোৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিছে। 22 জানুৱাৰী যি অনুষ্ঠান পাতিছিল সেই অনুষ্ঠানেৰে এটা ধৰ্মৰ ওপৰত আনটো ধৰ্মৰ জয়লাভৰ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে নেকি বুলি চৰকাৰক আছাদুদ্দিন ওৱেইছে প্ৰশ্ন কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰে কোনো ধৰ্ম ভাৰত চৰকাৰ আছে নেকি বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেইছে প্ৰশ্ন কৰিছে। মই বাবৰ জিন্না বা ঔৰংজেবৰ মুখপাত্ৰ নেকি বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেইছে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে। মই ভগৱান ৰামক সন্মান কৰোঁ বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেইছে মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু মই নাথুৰাম গডছেক ঘৃণা কৰোঁ, কাৰণ গডছে সেই ব্যক্তিজনক হত্যা কৰিছিল যাৰ শেষ কথা আছিল হে ৰাম। আছাদুদ্দিন ওৱেইছে কি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर, तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए।
मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, सर ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर, कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर, तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर यह बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है,
सर ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर